I'm starting the screen sharing. Just see if you can see the PPT. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So last time we have seen this hexadecimal to binary. We will continue with that. Just a moment. So let's continue with the next topic, which is binary to octal. Okay. Now in binary to octal, we are going to see how binary number gets converted into octal equivalent. So note over here is that we need to convert, not convert, you can say group in form of 3 bits starting from decimal point towards left for integer values and towards right for fraction values. It is just similar to your, conversion when we did binary to hexadecimal. So we just randomly pick up an example. So the example given is, let's say, like this something. Okay. So this in binary is what in text is the conversion. So first write down the number properly. So 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1. See if I'm writing the number properly. Is it proper? Yes, ma'am. Huh? Okay. Now we start the grouping process. Towards left for integer and towards right for fraction. ठीक है, तो हम ग्रुप करेंगे
group of 3, another group of 3, another group of 3, another group of 3, another group of 3. हाँ, सिंगल नंबर बचा यहाँ पे भी. Group of 3, another group of 3, it is just 2. तो अभी क्या करेंगे, एंड में ग्रुप नहीं बन रहा है तो वी विल एड एक्स्ट्रा zeros to it. Okay, we are going to add extra zeros to it. So I add zeros over here. Here I have a single digit towards the left, so I add 2 zeros so that it can become a 3-bit number. Here on the rightmost side I am having 2 bits, so I will add a single zero so that it becomes a 3-bit number, and then I will group it. So this becomes a 3-bit number, this becomes a 3-bit number. ठीक है, उसके बाद में हम उसके वैल्यूज लिखते जाएंगे कि वो वैल्यू क्या है. हाँ, दिस इज व्हाट 011 is what 3, 101 is what 5, 100 is 4, 111 is 7, 101 is 5, 001 is 1. Right hand side पे 101 is 5, 100 is 4, 110 is 6. So the number equivalent actually is 157,453.546 to the base 8. That's the answer. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी वैसे ही और एक एग्जाम्पल देखते हैं. डायरेक्टली ले रही हूँ या फिर इधर क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं. Something like this. So start writing. One zero zero 010 10111 dot 101110101. Okay. Now we group from left hand side towards the left hand side from decimal point 3 bits, 3 bits, 3 bits, and 2 bits. So I have to add a single bit to make it 3-bit number. 3 bits, 3 bits. This is proper 3 bits. No addition of number. So here I will add an extra 0. Okay. Now we write down the number. This is what 7. This is 010 is 2. 001 is 1. 010 is 2. 101 is 5. 110 is 6. 101 is 5. So basically, this answer to the base 2 we were finding what in octal is basically 2127.565 to the base 8. I hope this is clear to everyone. Yes, ma'am. Okay. Yes, miss. Same way we go it in the opposite order for octal to binary. Okay, for octal to binary. So here we do what? Here the most important note is we represent each octal number in 3-bit form
starting from decimal point in sequence. डेसिमल पॉइंट से लो नहीं लो, वो तो एक कॉमन जंक्शन हो गया बताने का. So let's take example 1. हाँ, अभी ऑक्टल नंबर लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि 8, 9 ऑक्टल में नहीं होते हैं. Hmm? 75402.164 to the base 8 is what? Hmm? So 75402.164. So you have to write down representation of each octal number in 3-bit form. Okay? So your answer will be Okay. 2 is 0, 1, 0, 0 is 0, 0, 0, 4 is 1, 0, 0, 5 is 1, 0, 1, 7 is 1, 1, 1. 1 is 0, 0, 1, 6 is 1, 1, 0, 4 is 1, 0, 0. That becomes the answer. ये लिखते कैसे है बताना है, बट अगर देखा जाए तो ये मैं इसका एक्चुअली कन्वर्जन डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ. जैसे कि ये पहले 7 था, 1 1 1 एक स्पेस छोड़ो, 1 0 1 5 एक स्पेस छोड़ो, 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 6 1 0 0 4. तो कैसा स्पेस छोड़ेंगे तो नंबर रीड करने में भी आसानी होती है. इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस ऑल्सो दैट व्हाट इज द value. If you write ones and zeros in continuous pattern, it becomes quite clumsy to read and we are not able to understand our mistakes. So that, you know, that giving that space becomes very important when we write any binary number. Let's take another example. 5642.1203 something like that. अभी मैं डायरेक्टली लिख के बताती हूँ कि इसका क्या आएगा. इसके लिए क्या पता होना चाहिए, जुबानी पता होना चाहिए. It should be on the tip of the tongue that what is each number representing in binary. उसके लिए वो चार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहना. 5 1 0 1 space 6 1 1 0 space 4 1 0 0 space 2 0 1 0 space 0 0 0 0 dot 5 6 4 2 0. Then 1 2 0 3 to the base 8 नहीं, sorry, 2. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is how we convert octal to binary. Next is hexadecimal to octal. तो इसमें कन्वर्जन कैसे होगा? अभी हमने पैटर्न दोनों देखे हैं, बाइनरी टू हेक्स, हेक्स टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी. तो हेक्स टू octal, instead of using calculative method, we use a shortcut method over here. Like first we convert hex to binary and then we convert binary to octal, because ये कन्वर्जन हमें आते हैं, ये कन्वर्जन इजी भी है, तो इसे टाइम नहीं लगता है कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है. So this method and this path we are going to follow to convert hex to octal. So let's take first example. AF 98.6D4 to the base 16 is what in octal? So AF
6D4। अभी ये नंबर्स थोड़ा मैं नजदीक लिखने वाली हूँ बिकॉज मुझे अभी कन्वर्जन करना है ये नंबर्स का, ठीक है। सो ए है या फिर 8 लिखो पहला, 1000, 9 है 1001, एफ है 1111, ए है 1010, डॉट 6 है 0110। 4 बिट फॉर्म में लिखना है बिकॉज आप हेक्स टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हो। डी इज 1101, 4 इज 0100, ठीक है। ये नंबर्स लिखने के बाद हमें अभी बाइनरी टू ऑक्टेल कन्वर्ट करना है, इस वजह से हम डेसिमल पॉइंट towards left when we go, we will convert in group of 3. First 3, second 3, third 3, next 3, next 3, लास्ट में एक सिंगल डिजिट बचा। Then this is group of 3, next group of 3, next group of 3, next group of 3। यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा। सो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा डाल दूंगी ताकि वो ग्रुप कंप्लीट हो जाए। दो जीरोस मैंने ऐड किए। अभी हाइलाइटर से ये मैं ग्रुप फिनिश करती हूँ। नाउ यू विल राइट डाउन द वैल्यूज। तो अभी ये क्या है, 0 0 0 0 इज 0, 0 1 1 इज 3, 1 1 0 इज 6, 1 1 1 इज 7, 0 1 0 is 2, 0 0 1 is 1, dot, this is 3, this is 3, this is 2, 1 0 0 is 4, ठीक है। So then we write the answer that AF98.6D4 to the base 16 is 127630.3324 to the base 8. Did all of you understand? Yes, ma'am. वैसे ही और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। FE 541.A0B7 to the base 16 is what in octal, ठीक है। तो अभी नंबर्स लिखना शुरू कर देते हैं। F मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी। F तुम्हें डायरेक्ट बता रही हूँ, पहले मैंने एलैबोरेट करके लिखा बिकॉज मुझे समझाना था। तो F E 541, 4 बिट फॉर्म में लिखा ईच नंबर को। फिर A 0 B 7, हाँ 4 बिट फॉर्म में लिखा। अभी मैं ग्रुपिंग करना शुरू कर दूंगी, डेसिमल पॉइंट से टुवर्ड्स लेफ्ट, ग्रुप ऑफ 3। Okay, all of you are understanding now? If you are having doubts, please ask. Three bits, 3 bits, 3 bits, 3 bits, 3 bits, 3 bits। अभी एंडिंग में ये 3 बिट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं।
ठीक है, तो इससे मैं जीरोस, एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करके कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 जीरोस ऐड करूंगी, यहाँ पे सिंगल जीरो ऐड करूंगी। नाउ यू राइट द नंबर 001 is 1, 000 is 0, 101 is 5, 010 is 2, 110 is 6, 111 is 7, 011 is 3 dot. This is 5, this is 0, this is 1, this is 3, 3, 4. So the value, equivalent value is 3762501.501334 to the base 8. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is octal to hexadecimal. That also is going to be in the same pattern via binary. The path will be binary because it is very easy to use binary system and try to convert it. Okay, so here also we convert first octal to binary and then we convert binary to hexadecimal or hex. So the conversion becomes simple. So let's take an example. Seven 521.0426 to the base 8 is what in hexadecimal. ठीक है, तो पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं 77521.0426. Each octal number now will get represented in 3-bit form. Don't use spaces over here because I'm not writing the final answer. The way I have told you to write with spaces when you're representing a binary number, whether in octal 3-bit notation form or hex 4-bit notation form, is for the final representation. यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रही हूँ तो स्पेसेस लोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। अभी डायरेक्टली लिखते जाओ। 1 is in octal है ना, तो 3-bit फॉर्म में आएगा 001, 2 is 010, 5 is 010, sorry 5 is 101, 7 is 111, 7 is 111, ठीक है, डॉट 0 is 000, 4 is 100, 2 is 010, 6 is 110, ठीक है. Then we start converting in group of 4 now because we are finally converting it into hexadecimal number system. So group of 4. Okay. Next group of 4. Next group of 4. And then only 3 remain. So here we need to add 1 extra 0 so that we can finish it in group of 4. Go towards right hand side. First group of 4. Next group of 4. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ 4. तो यहाँ पे प्रॉपर हो गया तो एडिशन का जरूरत नहीं है. प्रॉपर नहीं हुआ देन वी नीड टू ऐड द एक्स्ट्रा zeros. So purposely I'm showing it with some extra color so that you understand that I have added this 0 for conversion. Now here 0001 is 1, 0101 is 5, 1111 is F in hex, 0111 is 7 in hex, dot 0001 is 1, 0001 is 1, 0110 is 6. Okay,
So the answer is 77521.0426 to the base 8 is 7f51.116 to the base 16. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो कुछ डाउट है? अभी अगला एग्जांपल लिया मैंने 6547.2465. इसका हमें एक्स में वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली लिख के दिखा रही हूँ तुम्हें. 6 3 बिट फॉर्म में पहला तो ऑक्टल टू बाइनरी है. 5 4 7 डायरेक्टली मैंने लिखा. हाँ, 2 4 6 5. हाँ, डायरेक्टली लिखने के बाद अभी हम इसका ग्रुपिंग करेंगे 4 बिट में. फर्स्ट 4 बिट, नेक्स्ट 4 बिट, नेक्स्ट 4 बिट. यहाँ पे कोई एडिशन का जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा जीरोस का टुवर्ड्स द एंड. फर्स्ट 4 बिट, बिकॉज प्रॉपरली ग्रुप ऑफ 4 बन गया. नेक्स्ट 4 बिट. नाउ यू राइट द number in equivalent hex form. 011 is 7, 010 0110 is 6, 1101 is D dot, 0101 is 5, this is 3, this is 5. So the answer is D67.535 to the base 60. Did everyone understand? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. So with that we finish all the conversions. समझ में आया ना सबको? Yes, ma'am. Yes. हाँ, Yes, तो ये एक ma'am. टॉपिक खत्म होता है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज कन्वर्जन. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि है कोड. जिसमें हम देखेंगे हाउ वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स, व्हाई बेसिकली वी रिक्वायर कोड्स, एंड देन वी विल सी the convergence of one code into the another code, which is again like mathematical sums only. So first Ma'am? let's revise. हाँ, yes, tell me. मैम वो आप पीडीएफ सेंड करोगे ना उसका ग्रुप पे, किसका? ये कन्वर्जन्स का? देखा नहीं तुमने? हाँ, ये अभी आज का मैं अपडेट करूंगी. ये देखो, ये टीम्स है ना, ये टीम है तुम्हारा, राइट? इन दैट यू गो टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. इन दैट फाइल सेक्शन में सी रेफरेंस बुक ऑल्सो आई हैव पुट अप, डी पालन. हाँ, ये मैंने ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है. ये यही वाला चीज है. ये पूरा रेफरेंस बुक जो है ना, ये तुम्हें पूरा है डी में. मीन्स इतना नहीं है, इसमें काफी ज्यादा दिया हुआ है. देयर इज अ लॉट टू डू बिकॉज इट इज अ रेफरेंस बुक, इट इज नॉट अ टेक्स्ट बुक. So many students were asking me, can you tell any particular book? Can you refer any particular book? तो यही book मैं खुद refer करती हूँ पढ़ाने के लिए. Many a times you will see that I'm using examples from this, and this is more than enough. I treated like an Gita or a Quran or a Bible. Means whatever digital electronics I feel
that I know properly, it is because of this book. It's a beautiful book. If you read it properly ना, इसका फर्स्ट कॉपी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि मैं खुद ट्राई कर रही हूँ. मेरा बुक अनफॉर्चुनेटली किसी को दिया था मैंने, तो मुझे रिटर्न नहीं आया, ऐसे ही कुछ 4-5 साल पहले स्टूडेंट्स को. सो ये लकीली आई गॉट दिस ई बुक फ्रॉम द गूगल. सो मैं वो यूज करती हूँ पढ़ाने के लिए. ठीक है, तो ये भी मैंने उधर अपलोड किया है. दिस इज DE पालन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. पालन इज द ऑथर नेम, NG पालन इज द ऑथर. इसका PDF. काफी बच्चे मुझे पूछ रहे थे अब रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहे हो, तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आते हैं. हाँ, रिकॉर्डिंग यहाँ पे आते हैं. ये 2021 ईयर है, 09 मंथ है और 16 डेट है, ये ध्यान देना. ठीक है, और ये आगे उसका टाइम आता है. हाँ, 14, 46, 39. 14 का मतलब है 2 बजे दोपहर को. 46 यानी कि 46 मिनट 39 सेकेंड, तो ये उसका टाइम होता है. तो ये देख के भी, जैसे कि ये 16 सितंबर वाला लेक्चर है, 17 सितंबर वाला लेक्चर है, 18 सितंबर वाले 2 लेक्चर्स है और 20 सितंबर वाला सिंगल लेक्चर है, बिकॉज अभी पिछले 2 लेक्चर्स मेरे कैंसिल हुए. समझा क्या सबको? Yes. यस मैम. हाँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में वो मैं जैसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये यहाँ पे अपने आप अपलोड हो रहा है. लास्ट ईयर मैं खुद करती थी, मुझे करना पड़ता था, बट ये साल there are many changes in the Teams app, so this is one of the features which is given to us, which is like a boon to the teachers, because we don't need to do anything extra now. It is automatically doing that. Then unit 1 में I have uploaded this D conversion, the first PDF मैंने अपलोड किया है, और कन्वर्जन सेकेंड PDF है. ये लास्ट लेक्चर तक का अपलोडेड है. आज का जैसे ही हो जाता है लेक्चर, आई विल मेक इट इन द फॉर्म ऑफ PDF एंड आई विल पुट इट ओवर हियर ओनली. उसमें ही ऐड होते जाएगा वो. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यूनिट 1 के सारे PDF. ओके, थैंक यू मैम. ठीक है, coming back to our topic. So this all convergence we have seen. तो हम अभी इसे ब्रीफली रिवाइज करते हैं. 12 conversions as I have told you that we have seen. तो ब्रीफली रिवाइज करने के लिए हम उसके कन्वर्जन रूल्स लिखते हैं कि क्या है करके ये. ठीक है, so conversion, name of the conversion and the rule, so that you know, you remember it, that how are we supposed to convert it. Just a moment. Okay, so decimal to binary, the rule will become decimal to binary rule is division by 2, because वो नंबर को हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, रिकॉर्ड द रिमाइंडर्स करते हैं. Then next, decimal to octal, it is division by 8, base of the number system. Decimal to hex, it is division by 16. ठीक है, देन बाइनरी टू डेसिमल. बाइनरी डेसिमल में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई by 2. by power of 2, depending upon the positional number which we are having, कि उसका इंडेक्स क्या है. ऑक्टल टू डेसिमल में मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 8, और हेक्स में मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 16. फिर आता है ऑक्टल टू बाइनरी.
ऑक्टल टू बाइनरी में वी रिप्रेजेंट each octal number in 3-bit form. Hex to binary में we will represent each hex number in 4-bit form. ये ध्यान में रखना है. Then binary to octal. Binary to octal में we will combine groups of 3 bits. ये उसका hint है. Binary to hex में we combine groups of 4 bits. And then last but not the least, hex to octal में convert hex to binary and then binary to octal. उसी के जैसा लास्ट वाला convert octal to binary and binary to hex. So that's the rule which you need to remember. So chart form में मैंने लिख के दिया कि ये 12 conversions है और ये 12 rules है ताकि तुम्हें methods याद रहे. वरना होता क्या है, पूरा रिवीजन होने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली हमें ये सारी चीजें कैसी करनी है. Did you get it? Understood all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now starting with the codes. Okay. So basically, what are codes and why do we require them? So let's see that first. Okay. So basically, what is a code? Code is nothing but they are combination of numbers. So numbers can be anything. They can be either alphabets or they can be numbers or they can be certain symbols. जैसे कि आजकल में QR कोड आया है. तो QR कोड आजकल आया है, पहले बार कोड था. बार कोड अभी भी यूज होता है काफी हद तक, जहाँ पे हम डॉट्स एंड डैशेस वगैरह यूज करते हैं और उनका खुद का अपना एक आइडेंटिफिकेशन रहता है. तो बेसिकली जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, एनी प्रोडक्ट वी आर टेकिंग, सपोज वी आर गोइंग टू सम ग्रोसरी मार्केट, डिजिटल ग्रोसरी मार्केट इन अ मॉल, वेयर यू जस्ट सुपरमार्केट में जाते हैं तो हम चीजें पिकअप कर लेते हैं ट्रॉली में, एंड देन वी गो टू द बिलिंग काउंटर. How do they bill it? They don't see the value. What do? They scan the barcode with a scanner and then automatically in the laptop, the reflection of that product comes. What is the name of the product? What is the weight? And what is the value as per the weight? That details come up. How that they are coming? Because the barcode was scanned. बराबर है? ये याद आया ना? ये पता है ना सबको? तुम लोग तो डिजिटल जनरेशन हो भाई, मेरे से तुम लोग को ज्यादा पता है. Yes, ma'am. I am much older compared to what you people are, so you are knowing way better things than me. Okay, so that is how the codings are. जैसे कि आजकल QR कोड आया है, QR कोड में भी certain patterns होते हैं. वो patterns के वजह से हम identify कर सकते हैं कि जैसे कि आजकल QR कोड पेमेंट के लिए भी यूज होता है, स्कैन करने के लिए. तो वो QR कोड में क्या रहेगा, अगर हम लोग कोई शॉप में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वो बेसिकली शॉप का GST नंबर रहेगा, शॉप का नाम रहेगा, किधर है, सारे डिटेल्स रहेंगे वो शॉप के बारे में, तो वो आ जाता है ऐसा. सो दे आर कोड. सो व्हेन नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल ग्रुप ऑफ सिंबल्स, वी से दैट दे आर बीन एनकोडेड and the group of symbols will be called as codes. So basically codes are nothing but they are group of symbols. ठीक है? To allow computer to fasten the calculation, one should use less hardware and should use codes which will give you all the mathematical calculations so that the steps are lessened. That is another use of it and the requirement. Now in computers we use binary numbers for internal processing. जैसे कि
एक्चुअली कंप्यूटर या फिर एनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बी इट योर एंड्रॉइड फोन और योर पेन ड्राइव or your laptop, personal computer, even nowadays the LCDs, LEDs, all these things what are used, the internal hardware used in all of them is basically in digitized form. So basically all are processing binary values. All these digital electronic devices are processing binary values. ठीक है, तो अगर वो बाइनरी वैल्यूज प्रोसेस कर रहे हैं, then हमें as humans to remember all those combination is difficult, and that's why we have this different number systems. जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्स है, डेसिमल है, वो चीजों को बाइनरी में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है, बट बाइनरी कॉम्बिनेशन वंस एंड जीरोस में याद रखना डिफिकल्ट होता है. कंप्यूटर डील्स विथ नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लाइक अल्फाबेट्स, punctuation marks, and special characters as well as numbers. To allow computer to handle all these non-numerical information, we also have alphanumeric codes. Now, when one computer communicates with the other, there is always a risk of unwanted signal called as noise. Noise एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है, ठीक है. नॉइज का मतलब क्या है? नॉइज का मतलब है अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रे सिग्नल. नॉइज का बेसिकली डेफिनेशन है अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रे सिग्नल. स्ट्रे का एक्चुअली मतलब है अनवांटेड. जैसे कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रे डॉग. स्ट्रे डॉग क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो जो डॉग्स होते हैं, पेट्स है, they are like domestic animals, but when they are found on roadside, we don't have any, owner for it, authorized owner or a parent or a guider for it. Okay, तो इसके लिए वो ऐसे ही घूमते रहते हैं. So basically the unwanted word use नहीं करते हैं because they are also life on the earth as we are. So they have equal amount of authority to stay and live the life properly on the earth as we humans are saying. So we should not say that they are unwanted. Yes, obviously they are wanted. It is a ecological cycle in which we are all staying together. तो इसके लिए उसके जगह पे एक्चुअली स्ट्रे यूज करते हैं. स्ट्रे का मतलब है कि उसका कोई मालिक नहीं है. देयर इज नो ऑथोराइज्ड पर्सन टू टेक केयर ऑफ इट, लाइक दैट. तो वैसे ही जैसे कि अगर ए मोबाइल बी मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहा है और उसी टाइम सी मोबाइल डी से कम्युनिकेट कर रहा है, मान लो दोनों भी इंपॉर्टेंट कॉल पे है, तो ए टू बी के कम्युनिकेशन के लिए सी टू डी का कम्युनिकेशन विल बिकम अ नॉइज बिकॉज वो अनवांटेड है उनके कम्युनिकेशन के लिए. वैसे ही सी टू डी के कम्युनिकेशन के लिए ए टू बी कम्युनिकेशन विल बिकम नॉइज. Did you understand what I'm trying to say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Moving quickly ahead, these are all the different codes which we are going to learn. So let's see different codes. First is weighted code. Second is mute. Second is non-weighted code. Third is alphanumeric code. And fourth is error detecting and error correction code. तो वेटेड कोड में काफी सारे होते हैं. हम उसमें से कुछ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए, बिकॉज उसके हिसाब से बाकी सारे लिखे जाएंगे. सो वेटेड कोड में है बीसीडी कोड. बीसीडी का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल. ठीक है, उसमें काफी सारे कोड्स है. 8421, 7421, 5421, 5211, 4221, 3321, 3421 एंड सो ऑन. ठीक है. नॉन वेटेड कोड में एक्सेस 3 है, ग्रे कोड है. अल्फान्यूमेरिक कोड्स आर ASCII, EBCDIC, holomorphic code. And error detection and error correction codes are Hamming code and parity code.
ओके, सो ये XS3 को हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, वर्ड फॉर्म में। XS3, ठीक है, तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, so now first we are going to see the weighted code. ये हमारे वेटेड कोड है। तो कैसे लिखेंगे? तो BCD स्टैंड्स फॉर, वेटेड कोड में ये कोड है BCD। BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो सिर्फ डेसिमल वैल्यूज इसमें एग्जिस्ट करते हैं 0 to 9। 8421 कोड एक्चुअली हमने ऑलरेडी देख लिया है। 8421 कोड का मतलब क्या है? जो हमने ओरिजिनल कोड देखा वो डेसिमल टू बाइनरी लिखने का, 0 से 9 तक 4 बिट फॉर्म में। हाँ, जैसे उसका वैल्यू है 0000, 0 is 0000, 1 is 0001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry, 8, 9, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी लिखा। अभी इसको 8421 क्यों कहते हैं वो हम देखेंगे। अभी 8421 का मतलब है ये 1 कहाँ से आ रहा है? 2 raised to 0। Where is 2 coming from? 2 raised to 1। Where is 4 coming from? 2 raised to 2। And where is 8 coming from? 2 raised to 3। तो एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट किया गया है। दैट मीन्स दिस leftmost position bit weightage value is 8, next position bit weightage value is 4, next position 2, last position 1। उसके हिसाब से नंबर आते हैं। जैसे कि तुम कोई भी अभी नंबर उठा लो, 5 उठा लो, हाँ, तो ये क्या है? 8 4 2 1। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो 4 और 1 हाई है, 8 और 2 0 0 है, यानी कि 4 + 1 is 5। 6 ले लो, 4 + 2 is 6। 7 ले लो, 4 + 2 + 1 is 7। Are you understanding? Yes, यस मैम। So इस तरह से उसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम 7421 लिखेंगे। तो 7421 में हमें ध्यान में रखना है कि हम बिट वेटेज के हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो 7421 में तो अभी ये वाला तो सेम रहेगा, 0 0 0। ये भी 0 0, लास्ट पोजीशन 1 में 1 बन रहा है। फिर 0 0 2 वाले पोजीशन में 1 बन रहा है, बाकी सब जीरोज है, तो एडिशन होके वो 2 बनेगा। नेक्स्ट 0 0 1 1, 2 + 1 3। नेक्स्ट 4 वाला हम 1 बनाएंगे, बाकी सब जीरोज, तो वैल्यू इज 4। नेक्स्ट 5 वाला 4 और 1 का 1 बनाएंगे। नेक्स्ट 6 is 4 and 2, we will make it as high and others as zeros. Up till here it is the same. Is this clear to all of you? Understood how I'm writing it? यस मैम। Yes, ma'am. वैसे ही हम 7 कैसे लिखेंगे? अभी 7 के लिए हमें, अभी पिछला तुम अगर कोड देखोगे 8421, उसमें हमने 4 2 1, all three of them we have made high because it is giving to us the total value as 4 + 2 + 1 is 7, ठीक है।
बट यहाँ पे 7 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उस चीज को 1 बनाएंगे और बाकी सबको 0। टोटल एडिशन बन जाएगा 7। तो ये कोड वैल्यू बनेगा उसका 7 का 7421 कोड सिस्टम में। तो 100 is basically 7 in 7421 and it is 8 in 8421. तो ये डिफरेंस हो जाता है कोड का। Are you getting me? Yes, ma'am. नेक्स्ट वैसे ही 8 कैसे आएगा? 8 7 को हम 1 बनाएंगे और 1 को 1 बनाएंगे, तो 7 + 1 is 8। 9 कैसे आएगा? 7 को हम 1 बनाएंगे और 2 को हम 1 बनाएंगे, तो 7 + 2 is 1 9। मैम हाँ बोलो। वो 111 क्यों नहीं लिखा किधर? वो 7 पे? मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें? 7421 कोड बता रही हूँ ना। तो ये जो 7421 बता रही हूँ, तो ये वाला जो पोजिशनल वेटेज है, ये क्या है? 7 2 मिनट। 2 मिनट। I'm not. ओके, तो ये है 7421। जब भी हम 7421 बोलते हैं तो 4 बिट्स का वेटेज वैल्यू तुम ये कंसिडर करोगे 7421। तो उसमें से अगर मैं 7 को 1 बनाती हूँ तो बाकी सब 0 रहेगा। Who is that hero who is singing song? उस दिन उतना बोलने के बावजूद तुम लोग सुधरते नहीं हो ना। I have my own ways of doing and getting the things done. Huh? If I start finding out who is that person now, it will be a permanent closure to the lectures of digital electronics. I will not allow you throughout the semester. Please remember. Is this clear? Who has asked me the doubt? समझ में आया क्या? वैसे ही यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 7421, सेवन फोर टू वन 7421 7421। तो अभी इसमें ये हमने 7 को 1 बनाया तो वैल्यू बन गया 7। 8 में 7 और 1 को 1 बनाया तो वैल्यू बन गया 8। 9 में 7 और 2 को 1 बनाया तो वैल्यू बन गया 9। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? हु वाज आस्किंग मी? मैम तो अगर हम लोग 011 लिखे तो 4 + 2 + 1 तो 7 होता है, तो वो भी लिख सकते हैं ना हम लोग? कौन सा 011 लिखे? हाँ हाँ, तो वो भी 1 ही हो सकता है। जस्ट अ मैम मोमेंट। बहुत आवाज है। ओके
हाँ, तो वो भी 0 हो सकता, वो भी 7 हो सकता था, बट बिकॉज द प्रिविलेज इज गिवन टू अस दैट वी राइट प्रिविलेज ऑफ द 7th बिट इज गिवन टू अस। 7 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर 4 to 1 को ही अगर हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मैं कैसे बताऊं? हाँ, मान लो मुझे 7 रिप्रेजेंट करना है। हाँ, 7 रिप्रेजेंट करना है 8421 में और 7421 में। हेलो हेलो हेलो। Yes, हाँ, ma'am. सी Yes, ma'am. 8421 में वो बन जाता है 0111 और 741 में भी अगर मैं उसको 0111 लिखूंगी तो मतलब क्या रह जाएगा? मुझे बोलो, कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। मीन्स यहाँ पे सेम ही आ रहे हैं, बट मैथमेटिकली आगे जाके जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं वाया ये नंबर सिस्टम्स, तो उसमें फर्क पड़ता है। ओके, and also one more thing over here is, as the privilege of 7 is given to us, it is always better to write that bit as high and others as 0. Are you understanding what I'm trying to say? Yes, ma'am. Now, हम बाकी के लिखते हैं। अभी हम 5421 लिखेंगे, तो उसमें भी जब तक हमें प्रॉपर एडिशन मिल रहा है नंबर्स का, लाइक 4 तक बराबर जाएगा, 5 से वो चेंज होगा। उस इधर भी रूल्स वही रहता है। हाँ, यानी कि 4 to 1 के हिसाब से वो वैसे ही जाएगा। 0000 0001 00102 वाला है, 0011 2 and 1 वाला है, और 4 के लिए 0100। हाँ, उसके बाद में 0100 के बाद में हम 0101 लिख सकते हैं, बट अगर बिकॉज हमें ये 5 का वेटेज दिया हुआ है करके वो चेंज हो रहा है, ये ध्यान में रखो पॉइंट, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये बनेगा 1000 because 5, the 5 value bit position is given to you, so you have to use that and start writing ahead from that. So 1000
5 वाला पोजीशन 1 होगा, बाकी सब 0, तो वैल्यू होगा 5। तो 6 कैसे अभी लिखेंगे? 5 वाला 1 होगा और 1 वाला 7 1 0 1 0 8 5 plus 2 plus 1 and 9 5 plus 4. Did you understand now? How do we get it and what is the difference? Yes ma'am. वैसे ही अभी 5 2 1 1 देखेंगे हम। फाइव टू वन वन में 0 0 0 0 1 के लिए 0 0 0 1 2 के लिए 0 0। अभी ध्यान दो यहाँ पे। 2 के लिए मैं 2 के लिए हाई नहीं बना रही हूँ, 1 1 दिया हुआ है, ये चेंज आया है यहाँ पे। पहले अभी तक ये 2 था, अभी ये 1 बन गया है, तो उसको यूटिलाइज करना है वो चेंज को, स्टार्टिंग टुवर्ड्स द एलिजिबिलिटी, तो ये 1 1 होगा। और अगर तुम देखोगे सीक्वेंस तो ये बराबर असेंडिंग ऑर्डर में ही जा रहा है, उसका जो डेसिमल बाइनरी का ओडोमीटर है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये 1 1 बनेगा। हाँ, फिर अभी 3 के लिए मैं कैसे लिखूंगी? तो 2 यूटिलाइज करूंगी और पहले लीस्ट बिट वाला 1 यूटिलाइज करूंगी। हाँ, फिर 4 के लिए मैं कैसे लिखूंगी? 2 यूटिलाइज करूंगी और ये दोनों 1 यूटिलाइज करूंगी। हाँ, 5 अभी 5 वाला यूटिलाइज करूंगी। 6 के लिए 5 और लीस्ट बिट वाला 1। Hello, ma'am. जबकि हम एक्चुअली ये वाला 1 Can भी you यूटिलाइज। explain that again? हाँ हाँ, मैम Can ये you जो explain 5 2 5 1 है ना, 1 वापस एक्सप्लेन। 2 वाला फिर से explain करो। जस्ट अ मिनट। See, 5 2 2 1 में हाँ 0 0 0 0 आएगा, 0 के लिए 0 0 0 1 आएगा। हाँ, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ, ये दोनों भी 1 1 है। अगर तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन क्या चल रहा है मुझे पता है, ये दोनों के बिट पोजीशन वैल्यूज 1 1 है। तो अगर मैं ये 1 को 0 0 1 लिखती हूँ और 0 0 1 0 लिखती हूँ, दोनों भी वैलिड होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? कंफ्यूजन दूर हुआ? मैम 0 1 0 0 नहीं लिखते। क्या क्या? मैम 2 के लिए हम 0 1 0 0 नहीं लिख हाँ, वो सकते। मैं Direct उस पे मैं आती हूँ, 2 मिनट रुको, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तो 0 0 0 1 भी लिख सकते हैं या 0 0 1 0 भी लिख सकते हैं, बोथ आर वैलिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 के लिए। हाँ, तो 2 के लिए तो काफी सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे। आइदर तुम 0 0 1 1 लिखो तो 2 बन जाएगा, या फिर 0 1 0 0 लिखो तो भी 2 बनेगा, बोथ आर वैलिड। अभी समझा क्या? yes ma'am. Yes ma'am. हाँ, नेक्स्ट 3 के लिए तुम 0 1 0 1 लिखो या फिर 0 1 1 0 लिखो, बोथ आर वैलिड। 4 इज 0 1 0 1 1 1 ही आएगा 4 के लिए। ठीक है, 5 इज 1 0 0 0 ओनली,
6 is 1 0 1 0 1 या फिर 1 0 1 0, both are valid. 7 is 1 मैम 1 या फिर 1 0 1 1 भी 7 होता है, 1 1 0 0 भी 7 होता है. Did you understand now? Yes, ma'am. एज के लिए 5 2 1 आएगा ना, तो 1 1 0 1 is valid, 1 1 1 0 is also valid. And 9 के लिए 5 plus 2 plus 7 plus 1 1 1 1. That's the only valid code. अभी समझा ना? यस मैम सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अभी ये 4 2 2 1 और 3 3 2 1 और 2 4 2 1 वाला तुम लोग खुद ट्राई करोगे बाद में. फिर वो उसका उसमें बुक में उसका आंसर दिया हुआ है, तो तुम पहले खुद ट्राई करना और बुक के साथ वेरीफाई करना, या फिर मैं यहाँ पे फिलअप करके दूंगी. समझा क्या? यस अभी खुद ट्राई कर सकोगे यस ना? मैम. तुम्हें ध्यान में इसमें से सिर्फ एक ही रखना Yes, है, ma'am. 8 4 2 1. मैंने तो बाकी सब ऐसे ही लिख के बताया कि कैसे लिखते हैं करके. ठीक है, तो ये वेटेड कोड्स हो गए हैं. नेक्स्ट वी कम अप टू BCD. BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल. ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल. तो बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल सिर्फ डेसिमल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट होता है. सबसे पहला बात तो ये फिक्स कर दो माइंड में. इट इज रिटन ओनली एंड ओनली फॉर डेसिमल नंबर. ठीक है, तो अभी डेसिमल नंबर्स कौन से हैं? 0 to 9. तो BCD कोड क्या आएगा उनका? 4 बिट फॉर्म. प्रॉपर जो कोड है वो 8421 वाला. हाँ, BCD यानी कि 8421 वाला कोड मैं लिख रही हूँ जानबूझ के यहाँ पे. तो 1 क्या आएगा? 0 0 0 1. 2 is 0 0 1 0. 3 is 0 0 1 1. 4 is 0 1 0 0. 5 is 0 1 0 1. 6 is 0 1 1 0. 7 is 0 1 1 1. 8 is 1 0 0 0. 9 is 1 0 0 1. ठीक है, उसके आगे जब भी हमें 10 लिखना होता है, हाँ 10 लिखना होता है, तो 10 हम कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट वाला उसका बाइनरी वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम ईच डिजिट को 4 बिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. यानी कि 10 में से 1 बना 0 0 0 1 और 0 बना 0 0 0 0. 11 बना 0 0 0 1 एंड 0 0 0 1. 12 is 0 0 0 1 and 0 0 1 0. 13 is 0 0 0 1 and 0 0 1 1. Did you understand all of you? यस मैम Huh? Then 14 0 0 0 1 0 1 0 0. वैसे ही 15, तो ये पहले के डिजिट सारे 1 बनते हैं. और ये 15 के लिए ये 5 बनेगा, ये 6, ये 7, this is 8 and this is 9. तो जैसे let's take and pick up some random numbers. 20 कैसे लिखेंगे? तो 2 and 0. 76 कैसे लिखेंगे? So 7 and 6. 85 कैसे लिखेंगे? So 8 and 5. 96, 9 and 6. 45, 4 and 5. 112, 3-digit number. So each digit of decimal we will represent in 4-bit binary form. So 1, 1, 2. अभी देखो तुम ध्यान दो, मैं जब भी नंबर लिख रही हूँ तो मैं 4-4 के ग्रुप में लिख के थोड़ा बीच में स्पेस छोड़ रही हूँ. So what happens is while representing, वो स्पेस की वजह से it becomes very
clear in identifying the number. 4, 2, 3. So 4, 2, 3. 9, 8, 7. So 9, 8, 7. 2, 3, 0. So 2, 3, 0. 1, 0, 2. So 1, 0, 2. Did you understand, all of you? Yes. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Hi, yes, tell me. Ma'am, actually my net is flickering. I'll see the recording later. I can't hear you. So if there will be any doubt, you will please explain me tomorrow. हाँ, तो अभी लेक्चर लीव कर रहे हो क्या? Yes, ma'am. Cause your voice is cracking. I'll join again and try. हाँ, लीव द लेक्चर और अगेन ट्राई करो ज्वाइन करके, ठीक है? Okay, ma'am. Okay. I hope this is clear to all of you. Just a minute, 2 minutes. हेलो हेलो Hello, ma'am. सॉरी, म्यूट हो गया था और मैं बात करते जा रही थी और मुझे लग रहा है कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, मैं पूछ रही हूँ, सॉरी। ओके, नॉन वेटेड कोड्स देखते हैं। एक्सेस 3 फर्स्ट, उसमें एक्सेस 3 सिंपली मीन्स दैट we have to add 3 to individual decimal number and represent the code in the binary for the calculated number. Okay, so let's take up the example. Like suppose से अगर मुझे 0 represent करना है एक्सेस 3 में, तो वो क्या होगा? तो बेसिकली कैलकुलेशन है 0 + 3 करना है हमें, तो वो आ जाता है 3 और फिर हम 3 का कोड लिखेंगे। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 0 इन एक्सेस 3। वैसे ही 1 का 1 + 3 एक्सेस 3, एक्सेस का मतलब है प्लस एंड 3 का मतलब है ऐड 3 करो।
तो ये बनेगा 4, तो कोड है 0100। तो ये 8421 पैटर्न में ही लिखना है, ये ध्यान में रखना, मैं जानबूझ के लिख रही हूँ यहाँ पे। 2 का मतलब है 2 + 3, so basically it is 5, so 0101। 3 का मतलब है 3 + 3, so basically it is 6, so 0110। 7, 4 is 4 + 3, so 7, so 0111। Okay, are you getting, all of you understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 + 3, जिसको सुनाई नहीं दे रहा था अभी सुनाई दे रहा है बेटा, वापस रीजॉइन करके। No, ma'am. Internet issue on my side, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है। देखो तुम, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है नॉइस की मेरे, तो लेक्चर लीव करना, फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना याद से। ओके, 5 + 3 is 8, so 1000। Then 6 + 3 is 9, so 1001। 7 + 3 is 10, so 1010। यहाँ पे मैंने प्रॉपर 10 लिखा, ध्यान दो। 8 + 3 is 11, तो 1011 11 का कोड आएगा। 9 + 3 is 12, तो 12 का कोड आएगा। ठीक है, ये सिंगल डिजिट फॉर्म में ऐसे हमें ये मिले। ओके, अभी आगे जाके 2 मिनट। हाँ, आगे जाके जब भी हमें 2 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट करने हैं एक्सेस 3 पैटर्न में, तो 11 + 3 13 हो जाता है, तो वैसा नहीं करेंगे हम। सिंगल डिजिट में हमने 3 ऐड किया, फिर उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट किया 8421 के पैटर्न में। अभी 10 क्या होगा? हाँ, 1 को हम 3 ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 0 को भी हम 3 ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो उसका कोड वैल्यू क्या आएगा अभी? 3 3। डिड यू अंडरस्टैंड? नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, कोई मुझे बता भी नहीं रहा है। मैम 1 + 3 3 कैसे? हाँ, 4 आता है, सॉरी, वही सब गड़बड़ कर दिया। So 1 + 3 is 4 and 0 + 3 is 3. So 4 and 3. Did you understand now? Yes, मैम ma'am. तो 2 डिफरेंट कोड Yes, होंगे ma'am. ना? हाँ, यहाँ पे लिखा ना है, देखो इधर, ये ध्यान दो, इंडिविजुअल डेसिमल नंबर। अभी समझा? समझा ना, इंडिविजुअल डेसिमल नंबर, इस वजह से वो वैसे आया। अभी गोइंग बैक टू 11, so 1 + 3 is 4, again 1 + 3 is 4, so 0100 0100। Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If the sound quality is bad, check your internet connection. मेरा कुछ इशू आ रहा है? No. अच्छा, ठीक, ओके, पता नहीं है क्यों आ रहा है। ठीक है, तो 12 का 1 + 3 is 4, 2 का 2 + 3 is 5, so 0 1 0 0 and 5 का 5, ऐसे करके
वैल्यूज आएंगी। तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज 1 + 3 4, 1 + 3 4, 1 + 3 4, यहाँ पे 3 + 3 6, 4 + 3 7, 5 + 3 8, उसके हिसाब से कोड्स आएंगे। 4 4 4, यहाँ पे 6 7 8, next 42, so 4 + 3 is 7, 2 + 3 is 5, so 7 and 5, then 8 + 3 is 12, 4 + 3 is 7, अभी 8 + 3 12 नहीं 11 है। मैम 8 + 3 11। यस यस, यानी कि कोई सो नहीं रहा। मैम ये मैं बीच में से 1 जानबूझ के + 3 मिस्टेक्स करती हूँ। 4 के बाद डायरेक्ट 4 + 3 मतलब कैसे? अरे वो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, अभी मैं पूरा थोड़ी लिखते जाऊंगी, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं अलग अलग। अभी मैंने पहले 15 तक बताया, अभी ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ कि अलग अलग नंबर्स आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे। पूरा Okay, चार्ट बताओ 100 तक कैसे लिखना है। चलेगा नहीं। हम केजी में थोड़ी है। हाँ, इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे तो हम लोग बड़े बड़े कैप्शन डालते हैं, हाँ, मैच्योरिटी के। नहीं मैम, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, हाँ, तो 8 + 3 11, तो 11 का कोड आएगा 1011, 1011 एंड 4 + 3 आएगा 7, 0111। अभी 142। हाँ, तो 1 + 3 ऐड होके 4 बनेगा, देन 4 + 3 ऐड होके 7 बनेगा, एंड 2 मिनट, स्पेस का गड़बड़ हो रहा है। हाँ, 1 + 3 ऐड होके 4 बनेगा, देन 4 + 3 ऐड होके 7, एंड 2 + 3 ऐड होके 5। ठीक है, तो इक्विवेलेंट नंबर आएगा 4, देन 7 एंड 5। ठीक है, फिर 5 6 2 वाला। हाँ, 5 + 3 is 8, 6 + 3 is 9, 2 + 3 is 5, so 8 9 and 5. Do you understand, all of you? समझा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Next. अभी ग्रे कोड, नॉन वेटेड ग्रे कोड। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसका एक पैटर्न भी बताऊंगी लिखने का, और पैटर्न बताने के बाद एक्चुअली वो हमें वैल्यूज कैसे मिल रहे हैं वो भी बताऊंगी। पहले तो हम बेसिक डेसिमल टू बाइनरी लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं डेसिमल टू बाइनरी? 0 to 15, लास्ट डिजिट 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। नेक्स्ट 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1। नेक्स्ट 4 zeros 4 1, 4 zeros 4 1। Next 8 zeros
8 1। हाँ, अभी वही अगर हम ग्रे में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दो सब लोग, ध्यान से सुनो मेरी बात। लास्ट डिजिट 0 1 1 0 उल्टा, हाँ 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। समझा? 0 1 के बाद फ्लिप किया, फिर वापस 0 1 लिखा, फ्लिप किया। फ्लिप यानी कि रिवर्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 0 0 1 1 जो लिखते हैं अभी फ्लिप करेंगे, 1 1 0 0, फिर 0 0 1 1 1 1 0 0। नेक्स्ट 4 zeros आते हैं और 4 ones आते हैं, अभी फ्लिप करेंगे, 4 1 एंड 4 zeros। लास्ट वाला 8 zeros आएंगे और 8 ones आएंगे। अगर हम आगे कंटिन्यू करते 15 के आगे तो फिर फ्लिप होता था, 8 ones and 8 zeros। That is how we get a gray code in tabular form. Actual conversion बताऊंगी मैं। Did you understand that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अभी ये जो ग्रे कोड हमें मिला 0 to 15 लिखने के लिए आसान है, बट क्या होता है कि अगर हमें एक कन्वर्जन मिला है, जैसे मैंने बोला है कि तुम 1010 बाइनरी को ग्रे में लिखो, तो ये एक सिंगल मार्क क्वेश्चन के लिए तुम्हें पूरा टेबल लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है, अभी ये तो 4 बिट है बट 6 बिट हो सकते हैं, 8 बिट हो सकते हैं, तो तभी हम कैसे लिखेंगे? तभी हम थोड़ी पूरा चार्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए उसका एक कन्वर्जन मेथड है, ठीक है। अभी वो मेथड के लिए हमें पहले ध्यान में रखना है कि लॉजिक गेट्स क्या है। लॉजिक गेट्स के बारे में सुना आप लोगों ने, पता है, मैथ्स में था। हाँ, हाँ एंड गेट और गेट। हाँ, वेरी गुड। कॉमर्स वाले हैं उनको भी पता होगा। यस और नो? एनीबडी हियर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम? कॉमर्स स्ट्रीम प्लीज से, प्लीज डोंट। Yes, ma'am. हाँ, याद है ना बेटा तुमको, मैथ्स में था ये लॉजिक गेट, एंड लॉजिक, और लॉजिक, नॉट लॉजिक। नहीं, हाँ, मैं भी आपको सबको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जो बोलूंगी वो बेसिक से ही बोलूंगी, उसमें मैं कुछ ये नहीं करूंगी, यानी कि डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। तो लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें काफी सारे इनपुट्स होते हैं। देयर आर मेनी इनपुट्स वन आउटपुट। but it is having only one output. हाँ, आउटपुट बाइनरी फॉर्म में होता है लॉजिक गेट का, यानी कि आइदर 0 होगा या 1 होगा। हाँ, डिजिटाइज लैंग्वेज में 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट और 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में। प्रैक्टिकली अगर हम सिस्टम में देखने जाए तो इसके लिए जो ये लैपटॉप्स होते हैं या मोबाइल्स होते हैं वो लो पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस होता है, उनका जो बैटरी वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट के ऊपर नहीं होता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज द मैक्सिमम बाइनरी वैल्यू व्हाट इट विल होल्ड इज ऑफ 5 वोल्ट। तो उसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो आइदर 0 होगा या 1 होगा। ये 0 होगा या 1 होगा फॉर व्हाट कॉम्बिनेशन विल डिपेंड अपॉन द लॉजिक ऑफ द लॉजिक गेट, कि वो बेसिकली लॉजिक गेट का लॉजिक क्या है। जैसे कि अगर हम एंड गेट देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंड गेट देखते हैं तो एंड गेट का एक्सप्रेशन है A डॉट B। तो ट्रुथ टेबल कैसे आता है? 0 0 के लिए एंड इज 0, 0 1 के लिए 0 और 1 0 के लिए 0 और 1 1 के लिए 1, यानी कि व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई आउटपुट इज हाई। याद आया क्या मैथमेटिक्स? यस, अभी ये तो हम बाद में देखेंगे एंड गेट को डिटेल में, मैं उसको
चालू करने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, बट उसके पहले अभी जो हमें गेट एक्चुअली हमें जरूरत पड़ने वाला है दैट इज एक्सॉर गेट। हाँ, जो हम यूज करेंगे दैट इज एक्सॉर गेट। ठीक है, ये एक्सॉर गेट का सिंबल है। ए बी और उसका एक्सप्रेशन है ए प्लस एन अ सर्कल बी। ठीक है, हाँ अभी इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं प्रॉपर कि क्या आता है। सो ए बी आउटपुट ए y is a plus another circle b। ठीक है, अभी दो इनपुट्स है तो हम जीरोज और वन के कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं। तो टू इनपुट्स के लिए कितने कॉम्बिनेशन होंगे, ध्यान दो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ, यही आपने भी यूज किए थे मैथ्स में। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सॉर आउटपुट का डेफिनेशन क्या है? एक्सॉर गिव्स यू अ हाई आउटपुट व्हेन बोथ द व्हेन you have odd number of both are high. inputs। so 0 0 के लिए 0 होगा, 0 1 के लिए 1 1 0 के लिए 1 1 1 के लिए 0। तो it will give you high output when odd number of inputs are high। odd number यानी कि 0 1 में सिंगल 1 है। सिंगल 1 का मतलब है कि 1 number of input is high, यानी कि odd number of input is high। 1 0 में भी odd number of input is high। 1 1 में even number of input is high, यानी कि दो इनपुट्स आए हैं तो जो 2 बन जाता है इवन नंबर, तो इसके लिए उसका आउटपुट 0 है। तो बेसिकली तुम्हें ये ध्यान में रखना है एक्सॉर गेट में कि जब भी दोनों इनपुट्स 0 1 या फिर डिसिमिलर होते हैं तभी उसका आउटपुट 1 है। जब भी दोनों इनपुट सिमिलर होते हैं, हाँ सिमिलर होते हैं, तो उसका आउटपुट 0 होता है। ध्यान में रहेगा? यस मैम। ओके, तो अगर ये ध्यान में है तो फिर मेथड इजी जाएगा। नाउ लेट्स कम टू मेथड। ठीक है, अभी कोई भी नंबर पिकअप कर लो। चलो 11 पिकअप करती हूँ मैं, ये हाँ बाइनरी 1 0 1 1 को हमें ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। जस्ट अ मोमेंट अब। मैम माइक इज म्यूटेड। ओ सॉरी। तो अभी हम इसका कन्वर्जन देखेंगे। हाँ 1 0 1 1 का हम कैसे करेंगे? तो इसमें MSB बिट जो है, ये MSB बिट ये वैसे का वैसे जाता है। ठीक है, ये जो 1 और 0 है इसमें हम एक्सॉर करते हैं। तो 1 0 आता है 1, 0 1 का भी एक्सॉर करते हैं। हाँ, और ऑलवेज MSB से ही शुरू करेंगे। 0 1 का भी एक्सॉर करेंगे, वो भी आएगा 1,
और 1 1 को भी हम एक्सॉर करेंगे, वो आएगा 0। उस तरह से हमें ग्रे कोड उसका मिलेगा 1 1 1 0। यहाँ पे देख लो आप। डिड यू अंडरस्टैंड Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, तो ये आएगा। नाउ उसके हिसाब से हम अभी कन्वर्जेंस देखते हैं। Ma'am, once more, please. दो मिनट, जस्ट 2 मिनट। हाँ, 1 मोर टाइम ना बताती हूँ। ये जो MSB पोजीशन 1011 का कन्वर्जन कैसे करते हैं? बाइनरी टू ग्रे। 1 हम लोग डायरेक्टली 1 लिखेंगे, फिर MSB का और नेक्स्ट डिजिट का एक्सॉर करेंगे। 1 0 अगर हम एक्सॉर गेट में देंगे तो उसको आंसर मिलेगा हमें 1। 0 1 अगर हम एक्सॉर गेट में देंगे तो उसका आंसर मिलेगा हमें 1। 1 1 एक्सॉर गेट में देंगे तो उसका आंसर मिलेगा हमें 0। समझा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी हम कुछ कन्वर्जन देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, पहले तो सिंपल बाइनरी ले रही हूँ मैं, उसको हमें कन्वर्ट करना है ग्रे में। व्हाट इन ग्रे? ग्रे के लिए ग्रे लिखा जाता है प्रॉपर फुल वर्ड। हाँ, तो 1 1 1 1 0। तो अभी क्या होता है, ये 1 डायरेक्टली हम लिखते हैं, इसका और इसका एक्सॉर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 1 का एक्सॉर 0। नेक्स्ट 1 and 1 का एक्सॉर हमें मिलेगा 0, और 1 और 0 का एक्सॉर हमें मिलेगा 1। तो ये बन गया तुम्हारा ग्रे कोड। ये है तुम्हारा बाइनरी नंबर। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 1110 to the base 2 is 1001 ग्रे। समझा क्या अभी? Yes, समझ में ma'am. आया? अभी तुम टेबल रेफर करो, देखो। No, ma'am. कौन है ये जिसको नहीं समझ में आया? मैम 1 1 1 0 आएगा ना मैम? हाँ, तो मैंने 1 1 को 0 लिखा ना, ऐसे एग्जॉर कर मैम रहे वो हैं। A1 का नीचे मैम, MSB फर्स्ट डायरेक्टली 1 के नीचे। फर्स्ट 1 के नीचे MSB डायरेक्टली वैसे का वैसे जाता है, उसको हम कुछ भी प्रोसेस नहीं करते हैं। बात सुनो मेरी बराबर से, ओके मैम, ठीक ओके है? मैम। ये एज इट इज जाता Yes, है, ma'am. ये और ये 1 0 बनेगा, ये और ये 1 0 बनेगा, 1 Okay, ma'am. और 0 1 बनेगा। अभी फ्लो Okay, देखो okay. बराबर, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. अभी नेक्स्ट, ये तुम मैं पेन का इंक यहाँ पे बार बार बदलती थे तो तुमको इरिटेट होता रहेगा ना, ये क्या कर रही है पागल जैसा मैम? नो मैम। No, ma'am. मेरे को आदत है ये पागलपन सब करने का, क्योंकि फिर एक ही कुछ लिखते जाऊंगी तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। 8 डिजिट वाला ले रही हूँ।
नहीं ज्यादा हो गया ना डिजिट, एक भी नहीं, मैंने बहुत सारे लिखे। ठीक है, तो अभी मैं लिख रही हूँ। वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है, अभी ध्यान दो, ये डायरेक्टली लिखते हैं। MSB एज इट इज लिख रही हूँ मैं। अभी ये वन और ये वन क्या बनेगा? जीरो। वन एंड जीरो वन, जीरो एंड वन वन, वन एंड जीरो वन, जीरो एंड वन वन, वन एंड जीरो वन, जीरो and one. That's the answer. So answer is 1101, 0101 in binary is 1011, 1111 in gray. Did you understand now, all of you? Yes. Yes, ma'am. हाँ, तो चलो अभी बुक ओपन करो। अभी बहुत टाइम तुम लोग लेजी की तरह से सुन रहे हो मुझे। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी तुम्हें सॉल्व करने के लिए, वो तुम्हें करने हैं। फटाफट चालू करो लिखना, कन्वर्ट करना। Okay, solve these four. Solve these four. मैम इसमें डेसिमल क्वेश्चंस आते हैं क्या? क्या? नहीं, ग्रे में डेसिमल नहीं आते। अगर जहाँ जहाँ पे आते हैं उधर मैंने बताया है आपको, यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे प्लेन है। Done. Done, ma'am. मैम आप म्यूट
finished? Any one of you finished? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. चलो Done. बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Okay, चलो पहला आंसर बोलो. 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1. बराबर? Yes, ये है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, वेरीफाई. Yes, ma'am. पहले नंबर एडिशन जाएगा. फिर 1 and 1 is 0, 1 and 0 is 1, 0 and 1 is 1, 1 and 0 1, 0 0 0, 0 0 0, 0 1 1. Correct. Next, चलो 4. आंसर बताओ. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0. 1 1 0 1 1 0 1 0. 1 1 0 1 0 1 0. ये अभी तुम लोग जैसा बात कर रहे हो वैसा मैं बात करेगी तुमको समझ में आएगा लेक्चर. मैम 1 1 0 1 1 0 1 0. 1 1 0 1 1 0 1 0. बराबर है. सबको Yes, मिला ma'am. ही है. Yes. अभी Yes, last yes, वाला ma'am. बोलो. Yes, ma'am. बराबर ना इसका. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Correct, ma'am. और इसका 5 times 1 0. 1 1 1 1 0 0 5 times 1 1 0 1. 5 times 1 and 0 and 0 0 1. 1 0 1 1 1 more 0. 0 Ma'am 0 0 1 Ma'am, 0 0 0 1. 0 0 1. Last. अभी बराबर है. Yes, ma'am. Yes, अभी yes, समझा ma'am. ना? Yes, ma'am. समझा. Yes, ma'am. Yes. So that was the conversion for today. So I stop.